Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning, evening, and afternoon, whichever part you are in the world. Thank you, ICAP Election Committee, ICAP Secretariat, ICAP Management and staff for arranging this event. It gives me immense pleasure to be here and express myself. I trust you are keeping yourself safe and well during this challenging time. So this is Mustafa Kamal, FCA contesting for the council member. And the council role is a challenging role, and I am ready to accept this challenge. Because my life is full of challenges, and yet this will be another one for me. And I will share my challenges details in the days to come. Whatever I am today is because of ICAP. And this is time for me to pay back to the profession. And I must admit that ICAP has been doing good job over the last 60 years. Be it our institute management, our elected representatives, be it our regional committee or no other committee members. And also our members exceptionally done well, not only in Pakistan, but all over the world. But time is calling us for do more. And the ever-changing dynamics are really calling us to take new measures and new initiatives in order to secure our future. With this, I will take you through to my brief profile. So I am Director of Finance at K Electric. I have a track record of turnaround, project change management, 15 years of industry experience, certified director from ICAP, leadership trainer and coach, leading the largest finance trainee program in Pakistan. And this is a unmatched program in Pakistan. This gave me the true insights of how other global bodies are working. I have been interacting with them for the last 3 years. And last is training from EY, also served as manager, qualified in first go back in 2007. And also seconded to EY, Saudi Arabia. So a quick achievement from my side, I am a part of KE transmission and business development function as a finance business partner. And this is something actually unmatched with other traditional finance role. I am on the front side of the business since 2009 and worked with the brilliant minds of K Electric and even the brilliant chartered accountants ICAP have ever produced. Initiated finance business partner role in K Electric distribution function back in 2009 when the new Abraj management came in. Worked on key infrastructure projects worth over $1 billion USD. Have been all over the world on different projects. So this also gave me a different exposure by doing these sort of international projects. Passion in learning and development, attended leadership and strategy trainings from top firms including Center for Creative Leadership. So my vision for ICAP. So my vision for ICAP is actually reshaping our Institute for Future of Finance and makes Pakistan a truly global business, leadership, finance and accounting coalition. It should be beyond finance and accounting, right? The world is changing as many other candidates are also talking about. So in order to achieve my vision, ICAP needs to work on the following pillars. And this is very composed presentation. One is long-term vision and strategy, creating value for our stakeholders and privileges for members, industry and overseas. So now I will take you one by one and very important slides coming ahead. Long-term vision and strategy. जनाब जाना कहाँ है? मंजिल क्या है? 60 साल का सफर तय कर लिया. अगली टर्म के बारे में सोचना है मैंने या अगली जनरेशन के बारे में सोचना है? वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. ग्लोबल पोजीशनिंग क्या होगी मेरी? 60 साल में 11,000 निकाले हैं हमने मेंबर्स. आगे कितना निकालना चाह रहे हैं? अगले 60 साल में क्या होगा? अगले 30 सालों में क्या होगा? 2050 की बात करते हैं. Think about unconventional because council is a governing body, it's a leadership body, and we need to think about like think tanks and other corporate bodies are working in the world. So मेरी सबमिशन ये है, क्या आज ICAP हमारे लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोफेशन है या नहीं है? Many of the other people, unfortunately, it is not. How can we take ICAP as a first choice of profession within the accountancy? But बात accountancy पे खत्म नहीं होती जनाब. हमारा चैलेंज या कंपटीशन सिर्फ अकाउंटेंसी से नहीं, अब हमारा चैलेंज जो है वो नॉन अकाउंटेंसी से भी है और इस बात को समझने की बहुत जरूरत है. गॉन आर द डेज व्हेन वी प्रोटेक्टेड आवरसेल्व्स फ्रॉम द इनसाइड. टुडे द वर्ल्ड इज नाउ हैव मैनी अदर ऑप्शंस. तो हमारा जो कंपटीशन है वो अदर प्रोफेशन से भी है, एमबीए से भी है. हाउ वी आर थिंकिंग दिस पेंडेमिक विल चेंज द फ्यूचर ऑल टुगेदर. एजुकेशन विल बी क्वाइट चीप.
our students and a lot of people will be taking education from all over the world from Pakistan. We will not be having the competitive advantage what we had previously. We need to think about it very seriously. With this, I have some pertinent question to ask: how the future will look like, how the finance will look like, how the institute will look like, and how the R member will look like. We need to find those answers. With this, I can move to the next point. जो कि इसमें हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेवलप अ न्यू विजन एंड स्ट्रेटजी, बिल्ड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बाय विजिटिंग आईकैप ऑपरेटिंग मॉडल. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया की अदर बॉडीज भी इसी तरह चलती हैं. विजन तो बात करते हैं कि हॉलमार्क इन पाकिस्तान, अगले 30 साल 20 साल का प्लान बनाए, विजन को ट्रांसलेट करें नंबर्स में. 11,000 है पाकिस्तान की इकोनॉमी. PwC की 2017 की रिपोर्ट बात कर रही है कि हम वी विल बी इन टॉप 20 इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बाय 2050. 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो हमें तो बहुत प्रोफेशन, बहुत अकाउंटेंट पैदा करने चाहिए. हमारा रेशो क्या है? वी नीड टू थिंक अबाउट इट एंड देन वो ट्रांसलेट हो नंबर्स में, और नंबर्स ट्रांसलेट हो एक्चुअली माइलस्टोन में, और माइलस्टोन ट्रांसलेट हो एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के हाथ में. मेरे आने से किसी और के आने जाने से कोई फर्क ना पड़े और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहे. इट्स अबाउट द प्रोफेशन. अगर आपको सेफगार्ड करना है प्रोफेशन को, यू नीड टू थिंक अनकन्वेंशनली. सेकंड पॉइंट, एंड देन यू नीड टू थिंक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. ये ग्लोबल बॉडीज कोर कैपेबिलिटीज, आई लर्न स्ट्रेटजी. तो आपको अगर एक विजन बनाते हो तो उसके लिए कोर कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ती हैं. एट द इंस्टीट्यूट लेवल, आईटी में इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, बेस्ट पे करें हम इंस्टीट्यूट के लोगों को, मैनेजमेंट को, स्टाफ को, दे कैन वर्क लाइक अ विजन और सब अलाइन हो एक गोल की तरफ. सेकंड बात हो रही है मेक्स ये पाकिस्तान का ग्लोबल ब्रांड. कहां ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है? रेसिप्रोसिटी का दौर चला गया, अब सारी दुनिया में हो रही है कोलैबोरेशंस. वहां पे कहां स्टैंड करेंगे जनाब, या हम प्रोटेक्टेड इनसाइड से करते रहेंगे? तीसरा पॉइंट है कोलैबोरेट विद 5 फैक्ट नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी. आरपीए ब्लॉकचेन इस पे बातें जो नीचे कमेटीज हैं वो करती रहेंगी. बेंचमार्किंग विद इंटरनेशनल बॉडीज. सो आई टेक अ पॉज एंड आई कैन मूव टू नेक्स्ट. क्रिएटिंग वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स. पहले ये समझने की जरूरत है सीए की लाइफ साइकिल क्या है. सीए की लाइफ साइकिल 4 हिस्सों में डिवाइड होती है वेरी इंपॉर्टेंटली. वन इज द अट्रैक्टिंग द टैलेंट. क्या बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करें, ये पहला फेज है. सेकंड फेज है जब वो बच्चा आ गया तो इंस्टीट्यूट का रोल एक मदरली बिहेवियर होना चाहिए, उसको पास कराएं. हर ज्यादातर कोशिश करके व्हाट इज आवर पासिंग रेशो, व्हाट इज आवर रिटेंशन रेशो. लोग शुरू में ही चले जाते हैं, अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट नहीं होता, अगर आता है तो चला जाता है. सेकंड पॉइंट है कि उसको पास कराएं और उसको फर्म्स की अपॉर्चुनिटीज हो, उसको जो है स्टूडेंट लेवल पे क्वालिटी और इकोनॉमिकल एजुकेशन मिल रही हो. तीसरा लेवल, द डे ही और शी इज पास्ड, he has or she has the abundant of opportunities all over the world, not only in Pakistan. Wait in the industry और से वहाँ गाइड करें, बेटा आपको जाना कहाँ है. मुख्तलिफ बॉडीज वहाँ पे उन्हें गाइड करती हैं कि 3-4 सेगमेंट्स हैं स्पेशलाइज, उसमें कहाँ जाना है. दिस इज द थर्ड कैटेगरी. और चौथी कैटेगरी है पोस्ट मेंबरशिप, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन की. तो उसके बाद उसे हम कहते हैं कि जनाब आपने पास तो कर लिया, आप इंगेज कितना हो. विद दिस मैं बात करता हूं स्ट्रेंथन शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप की. आर इंस्टीट्यूट इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन इज प्रोटेक्टेड एट आर मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेकिंग इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड फिस्कल पॉलिसीज, क्रिएट वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर आर मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू लर्निंग, पार्टनर विद पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज एंड इन प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस स्टार्टअप फॉर अपॉर्चुनिटीज, और अंडरटेक डाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स. अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रिविलेजेस फॉर आर मेंबरशिप. इस पर हम बात कर लेते हैं. इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरसीज मेंबर्स. 85% लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपके जो हैं वो इंडस्ट्री में. गॉन आर द डेज 60-70% आपका मेंबर फर्म में होता था. एक्सीलरेट सेटिंग अप ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, improve industry article and quality control, reconnect with qualified non-members to bring them to the membership. अच्छा एक हो रही है किसी की साउंड. आज अगर मैं मेंबरशिप छोड़ देता हूं मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा? दैट्स अ पर्टिनेंट क्वेश्चन. I think I might not be contesting for the election and I might not be eligible for voting. इसके अलावा क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारी कंपेलिंग वैल्यू होनी चाहिए ना जनाब, ताकि आज अगर मैं मेंबरशिप छोड़ूं तो मुझे पता चले कि मेरे ये टेंजिबल बेनिफिट्स चले गए. एंड देयर आर 100 ऑफ पीपल हु आर क्वालिफाइड बट दे आर नॉट मेंबर. हाउ वी कैन एक्चुअली मेक द मेंबरशिप वैल्यू प्रोपोजिशन इन दैट मैनर दैट एवरीबडी गेट्स पेड बाय देमसेल्फ रादर देन देयर कंपनीज. सो दिस इज अनदर एरिया के पाकिस्तान में तो आधे लोग जो है वो खुद बात कर खुद पे करते हैं. यंग मेंबर्स आर आवर फ्यूचर. अब इस पे बहुत ही क्रिटिकल बात करने लगा हूं तो तामुल रखिएगा. मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन कह रहा है. 2019 की यूएन की यूथ डेवलपमेंट रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में यंग पीपल आर द सोर्स ऑफ इनोवेशन, सोर्स ऑफ आइडियाज एंड सोर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट. आई थिंक आर सीनियर पीपल आर, एज इज द सेइंग, ओल्ड इज गोल्ड. बट वी रिस्पेक्ट देम, बट दे नीड टू टेक दैट डाइवर्सिटी इनटू द सिस्टम और हमें वो मौका दें ताकि हम एक रोल प्ले कर सकें. मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस दिखा रहा हूँ. हमारी जो मेंबरशिप है 1961 से 1999 तक वो सिर्फ 19% है.
उसके बाद टोटल 8,800 की मेंबरशिप बेस है, जिसमें 31% 2000 से 2010 तक है, और 4,373 लोग हैं हमारे 50%। शिफ्ट इन आर मेंबरशिप विद लास्ट 10 ईयर्स की हमारी जो है वो 50% मेंबरशिप बेस है। तो इन लोगों को आगे आना चाहिए, इनको हमें एम्पावर करना चाहिए और इनको आगे इंस्टीट्यूट को लेकर के चलना चाहिए। विद दिस आई कंक्लूड माई प्रेजेंटेशन and you can reach out to me with this. A vote for me is a vote for you because Mustafa Kamal representing you. Thank you.